A very good evening, ma'am. Myself, Abhishek Chaudhary from collegeduria.com welcomes you on our platform, Thoughtful Leaders, on our College Duria initiative, ma'am. So, here is the very first question. You have held key positions at education institutes throughout your professional career. So, what are the key factors that keep you connected with the education sector? Thank you, Abhishek. Myself, Rashmi, Dr. Rashmi, Director, this SNE group of institutions. We run 3 colleges, Santosh B.Ed, DLED College, Center for Bioinformatics, a polytechnic, and a College of Life Sciences, that is a degree college. Apart from that, we run one school for underprivileged students, that named Snehkul Public High School. Okay, ma'am. So, all are these institutions based in one campus. Okay, ma'am. So basically, I'm a teacher. I was a professor. So after leaving my job, I wanted to give something to the society. Everybody wants to take something. So I started this, the best way to give whatever the newcomer, जो नए बच्चे आ रहे हैं, उनको समाज में किस चीज की जरूरत है, ये हम किसी को पैसा एक दिन देंगे, खाना एक दिन खिलाएंगे, लेकिन अगर हम पढ़ा देते हैं तो वो जिंदगी भर उनके लिए रहता है. ये सोच के हम इस लाइन में एजुकेशन सेक्टर में. That's great to me. So, education is the best gift to give the society. Society, exactly. So, moving to the next question, ma'am. The education system in India and other foreign countries are structured very differently. So, in your experience, what can an inbound student gain from studying here in your institute? Abhishek, the education system starts from alphabets and the number. So, throughout the world, in the global system, age A, one is one. Right is right, good is good. So there is no difference as such. I have been to the America, London, Greece, Milan, papers. So many papers are represented. But there is no difference. Difference, the teachers, how you are going to teach. So here in our college, so time to time, I call different international level professors, just to get interact with my students, so that they should know that they are like ourselves. They are also persons with high quality of knowledge. So there is no such difference. And my institute, the students of my institutes, they come out, they are placed internationally, nationally, and I'm proud of it. That's great, ma'am. So you conduct regular activities at the seminars? Yes, every year, national, international speakers, resource persons used to come seminars. We attend seminars for that. So we do. So those students get lots of opportunity. Yes, exposure. Actually, in our Jharkhand, students, they know each and everything, but how to express it, how to talk, that is the main topic. Yes. So what we do, we call professors and ask them कि please इनसे बात करिए, हिंदी में बात करिए. हम इसमें एक इंसिडेंट बताते हैं. Yes. एक इंटरनेशनल सेमिनार हम लोगों ने कराया था. हैदराबाद से डायरेक्टर आए थे. मेरे यहाँ के स्टूडेंट्स लोग सेंटर फॉर बायोइन्फॉर्मेटिक्स के स्टूडेंट्स थे. जब वो पास करके वहाँ पर हायर स्टडीज के एडमिशन के लिए गए, तो वो प्रोफेसर इस साइड टेबल के इंटरव्यू ले रहे थे. तो ये लड़का हिंदी में नहीं, इंग्लिश नहीं समझ पा रहा था. तो वो बोले कि तुम सेंटर फॉर बायोइन्फॉर्मेटिक्स के हो, हम तुम्हारे यहाँ आए थे. बोले हम आपको पहचान रहे हैं सर. तो बोले हम हिंदी में पूछेंगे, तुम बताओगे? बोले हाँ. वो हिंदी में पूछे, वो बताया, वो उसका एडमिशन हुआ. आज वो लड़का फ्रांस में रिसर्च कर रहा है. That's a very good story, ma'am. So इस तरीके से हम लोग इंटरैक्ट एक्सपोज करते हैं बच्चों के एक्सपोजर्स काफी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है. That's great, ma'am. So इसी एक्सपोजर के बारे में जानना चाहूंगा. How does the curriculum of Center for Bioinformatics ensure the best practice of industry? Actually, so through AICT, through State Board, Center for Bioinformatics is a polytechnic. The curriculum are fixed. Yes. These are the first, second semester, third semester. But apart from that, what we do, they have to go back to the society. What we do every quarterly, we take students to the different places. Students come from the different background. उन लोगों को गांव से निकल कर आए हैं, शहर भी कैसा है, एलिवेटर भी है अगर, ये नहीं मालूम. तो उन लोगों को लेके जगह जगह पहले साल घुमाते हैं. BIT मिश्रा ले गए, कांके ले गए, क्या क्या इंस्टीट्यूशन है, डिफरेंट लेवल के कंपनीज है, पब्लिक अंडरटेकिंग है. रांची में ये फायदा बहुत है. तो इन लोगों को जब हम दिखाते हैं
और दिखाते हैं कि इसके बेस में हमारे स्टूडेंट्स ही हैं, ये सारे जूनियर इंजीनियर्स जो बन के निकलते हैं सबके बेस में आप लोग हैं। तो आपका क्या इम्पोर्टेंस है ये बताते हुए उनको हम लोग आगे ले जाते हैं, तो उनका मोरल वैल्यू बढ़ाते हैं। और जब मोरल वैल्यू बढ़ता है तो फिर उसके बाद उनको किसी भी काम को लगता है कि नहीं हमारे बिना तो ये काम होगा नहीं, एंड वेरी सिंसियरली दे डू इट। हम लोग साइंस एग्जीबिशन कराते हैं, बच्चे उसमें ड्रोन भी बनाए हैं, इंडिपेंडेंटली ड्रोन बनाते हैं, जगह जगह से लोगों को एक्सपर्ट बुलाते हैं, रिसोर्स पर्सन बुलाते हैं, जजेज कराते हैं, डिबेट कराते हैं। तो क्यूरिकुलम के अलावा हमारे यहाँ से स्टूडेंट जो निकलते हैं वो बिल्कुल सोसाइटी के लिए वेल प्रोडक्ट रहते हैं। That's great, ma'am. So, moving to the next question, ma'am. What do you think your roles and responsibilities to the college and the students are? मेरा रोल एक्चुअली लाइक अ मदर, Yes, ma'am. लाइक अ मदर, आई एम लाइक अ मदर। वहाँ पे हम रेगुलर बहुत नहीं जाते हैं, शुरू में जाते थे, शुरू के 10 साल, अब जाते हैं। जैसे हॉस्टल में बच्चे हैं, हम जाकर देखते हैं कि वो उनका खाना सही मिल रहा है। अगर वो पैसा कम भी देते हैं, ज़्यादातर पैसा कम, लेकिन अगर उसमें हम 2 बिस्किट एक्स्ट्रा दे सकते हैं तो हम देते हैं, जो बेस्ट कर सकते हैं। मेरा रोल वो है, तो स्टूडेंट्स दे सी मी लाइक अ मदर। उन लोग सब तरफ से जब सब कुछ कर लेते हैं, जब नहीं कुछ होता है दे कम टू मी, एंड सबों के पास मेरा मोबाइल नंबर है, लेकिन कभी कुछ फोन नहीं करता है, कभी दे अपने से सॉल्व कर लेता है, खुद से बोलता है मैडम हम लोग के पास लिमिटेड प्राइवेट कॉलेज है, लिमिटेड अमाउंट है, बिरला टाटा नहीं है, स्टूडेंट्स का फीस भी इंस्टॉलमेंट में लेते हैं, तो हम लोगों को थोड़ा थोड़ा भी पैसा रहता है, तो सबसे पहले हम लोग टीचर्स को देना चाहते हैं क्योंकि उनको घर चलाना है, तो बच्चों को भी मालूम है, तो ये बच्चे खुद से सारा काम करते हैं। तो मेरा वहाँ पे है बस टू कनेक्ट ईच एंड एवरीबॉडी बाय थ्रू हार्ट। Okay, ma'am. Like a main guardian, main parent. Yes, that I do. So that's a very nice, ma'am. So when you first came to CBI, so like the Center for Bioinformatics, so what was your vision for the college, ma'am? So has it evolved over time, and how far along in implementation that vision are? Exactly. Actually, I started this college. Okay, that's great. So I started only for the students of the Jharkhand. हम जब 2003 में हम अपना कॉलेज छोड़े, I was a professor in college. जब कॉलेज छोड़े तो यहाँ पे मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी की पढ़ाई नहीं होती थी। गली गली में तरह तरह के पैथोलॉजिकल लैब थे, विदाउट एक्सपर्ट, विदाउट नॉलेज, कुछ भी अपना दे के टेस्ट दे के कह देना, डॉक्टर उसी टेस्ट पे सबका दवा लिख रहे थे। हमारा सबसे पहले हम स्टार्ट किए मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी का, और जो ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन से स्टार्ट एक्सेप्टेड, रिकॉग्नाइज्ड। तो हमारा यहाँ से शुरुआत हुआ जहाँ पे कि ऑनेस्टी, और उनको हमको जितना मैक्सिमम हम बता सके वो हम शुरुआत की। आज आप झारखंड में कहीं भी ब्लड टेस्ट के लिए जाएगा, हमारे कॉलेज का स्टूडेंट वहाँ पे, क्योंकि सरकारी नौकरी सिर्फ AICTE अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन को मिलता है, तो मेरे सारे बच्चे हर जगह बैठे। आप चाहिए उसमें डिप्लोमा इंजीनियरिंग, मेरी लड़की लोको पायलट में 2 रेलवे में, लड़कियां जो यहाँ से पकड़, मेरा कोई इंस्टीट्यूशन है, जगह जहाँ जाइए आप नाम लीजिए, दया। ये तो काफी अच्छी चीज। तो मेरा ये प्रोग्रेस स्लोली एंड विथ इन्वॉल्वमेंट, इसको हम बाय हार्ट की, ये मेरा हर एक बच्चा मेरा अपना बच्चा है। हम एक बार किसी कॉलेज में बच्चों को लेके जाना चाह रहे थे, तो हम पूछे कि हम अपने बच्चों को लेकर आना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, तो वो सोचे मेरे जो बच्चे घर पे, तो बोले कभी भी आ जाओ। हम बोले 40 लोग हैं, बोले 40 बच्चे। तो ये बच्चों को ये फीलिंग अब मेरे भी कॉलेज के बच्चों को है कि ये मेरा कॉलेज, तो ये हमारा वाला फीलिंग जो डेवलप कराते हैं वो कहीं नहीं। ये तो काफी अच्छी एनवायरनमेंट है, मैम, लर्निंग एनवायरनमेंट। So moving to the next question, ma'am, what would you like people to know about your university, about your college that they may not know? मतलब है कुछ ऐसी बातें मैम जो किसी सेंटर फॉर बायोइन्फॉर्मेटिक्स के बारे में लोग नहीं जानते हो। सेंटर फॉर बायोइन्फॉर्मेटिक्स में एक तो नॉलेज, स्किल्स, डेडिकेशन, ये सारा चीज तो है। इसके अलावा जब हम इंटरनेशनल, हम आपको बता दें कि हमारे यहाँ प्रोफेसर APJ अब्दुल कलाम थे, उनको भी हम लोगों ने बुलाया था, और एक सेमिनार था, उसमें हम लोगों को वो हम गए, हमारा ही इनिशिएटिव था। तो मेरे बच्चे जो प्रेसिडेंट तक से मिल चुके हैं, और प्रेसिडेंट रांची आके मिले उससे, तो ये एक
बहुत गौरवान्वित Yes, ma'am. महसूस करते हैं कि हम अपने बच्चों को ये दिखा पाए। तो Because ये बहुत कम लोग हैं। वहां पे फिर हम अपने बच्चे, मेरे बच्चे जो वहां पे स्नेहकुल के बच्चे, जो गरीब बच्चे जो पढ़ने आते हैं, उन लोगों को हम लोग दिन का चावल दाल सब्जी खाना देते हैं। ये सारा हमारे सेंटर फॉर वाइल्ड के बच्चे, संतोष पीर के बच्चे, इन लोग खिलाते हैं, इन लोगों के फीस के पैसे से जाता है। तो ये सब हम उन लोगों को बताते हैं, देयर इज ट्रांसपेरेंसी। तुम जितना फीस दे रहे हो, तुम अगर चाहोगे तुम्हारे एक बच्चा खाए, तुम तो ये हम फीस से अलग से पैसा नहीं देते, उन्हीं के फीस से हम उन लोगों को खिलाते हैं। हर एक सेंटर फॉर बायोइन्फॉर्मेटिव का बच्चा जाके उन बच्चों को मैथ्स पढ़ाता है, फिजिक्स पढ़ाता है, केमिस्ट्री पढ़ाता है। दैट्स ग्रेट मैम, जो सोसाइटी से वो लोग इंटेक कर रहे हैं वो सोसाइटी को वापस वहाँ करना सीख रहे हैं हमारे कॉलेज। ये काफी अच्छी बात है मैम, क्योंकि डिग्री तो काफी जगह पे मिलती है, डिग्री के साथ साथ तो एक अच्छा ये जो सोसाइटी को देने का प्रवृत्ति नहीं है, वो वहाँ पे है। That's very nice, ma'am. So moving to the next question, ma'am. Why do you see as Center for Bioinformatics College greatest strength, ma'am? Faculty teamwork. Okay. My faculty, they all are the best, and they do work like a team, like a family. So they are my strength. Okay. Very nice, ma'am. So what are some biggest challenges you see, ma'am? So both for higher education in general and for specifically for your college, ma'am. Actually, nowadays, from last 3 years, what we are finding that in Center for Bioinformatics in general, in this polytechnic or the engineering colleges, admission is going down. Graph is going very, very, very down. I don't know what is the government policies are there, but that is very pity. If we talk about that, we have to open the industries. From where we get that student? Other state. For this, government has to do something. Why this admission is low? And one point we come to know that पहले मिलता था 100% को स्टैटिक SC ST OBC को, अब नहीं मिल रहा है। तो SC ST बच्चे सच में नहीं दे पा रहे। हम कई एक सेमेस्टर के बच्चों को तो फ्री कर दे कि अभी बच्चा 5 सेमेस्टर पढ़ लिया, कहाँ जाएगा? तो एडमिशन is a crisis. So moving to the next question, ma'am. So what are some plans that you are currently designing for this college and for students also? We are keeping some goals. For that, we are asking some suggestions from the student side too. We want them कि भी तुम लोग पढ़ रहे हो, अपने फैमिली के प्रेशर से पढ़ रहे हो, खुद के प्रेशर से पढ़ रहे हो, जॉब के लिए पढ़ रहे हो, लेकिन इसके बाद क्या कर सकते हैं या हमारा कॉलेज और अच्छा क्या कर सकते हैं? तो इसके लिए हम लोग गोल कुछ रखें, सजेशन मांगे, कुछ प्राइजेस रखें, और उन लोग जब गोल देगा फिर हम लोग इसके ऊपर काम करेंगे। एंड डेडिकेशन, नॉलेज इज द मनी। स्टूडेंट आजकल सबसे पहले पैसा कमाना है, तो नॉलेज इज द मनी। जिसके पास नॉलेज है, आप आ जाए, आपके नॉलेज के कारण हम इतना इज्जत दे बैठा है। अगर कोई और आता मार्केटिंग के लिए तो शायद हम बात भी नहीं करते। तो नॉलेज इज द मनी, एंड इस लेवल से हम नेक्स्ट लेवल तक जा सकते हैं। ये हमारा एक एम है कि बच्चों को बताएं कि नॉलेज इज, मतलब इसका कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं। इतना बड़ा पैंडेमिक हुआ, सब चीज हुआ, बिजनेस ठप हुआ, लेकिन पढ़ने और पढ़ाने और नौकरी वाले सबको पैसा मिलता है, कोई भूखे नहीं। तो नॉलेज इज द मनी। Thank you, ma'am. Yes, ma'am. And आपके कॉलेज के एक्सपीरियंस बाय द स्टूडेंट फॉर द स्टूडेंट, यस, ये वाला कॉन्सेप्ट है। ये हम लोग का बहुत ही बड़े। अभी तक हमारा फर्स्ट बैच स्टूडेंट फोन करके बोलता है, मैडम ये लड़के का एडमिशन ले लीजिए प्लीज कहीं नहीं, क्योंकि वहां से जो पढ़ के निकले। परसों ही हम एक स्टूडेंट से बात करके बोले, मैडम यहाँ सिर्फ एडमिशन ले लेते हैं कि यहाँ पढ़ाएंगे। तो ये सुन के अच्छा लगा। Yes, get that kind of feelings, ma'am. So next question, ma'am. How do you tend to establish a healthy relation and environment in your college? हम लोग जब बच्चे एडमिशन होता है, yes, उसी समय हम बोल देते हैं कि वी आर फैमिली, फर्स्ट इंट्रोडक्शन। और एक हाथ अगर एक आदमी गिरता है तो 200 हाथ है, 200 आंख है। तो एक दूसरे को तुम लोग सपोर्ट करो। लड़ाई भी अगर होती है, घर में लड़ाई सब में होती है, भाई बहन में,
लेकिन कॉलेज की बात कोई भी तुम लोग के ऊपर उंगली नहीं उठा। ये मेरा पहले साल से 2003 से और आज तक टच मेरे कॉलेज के बच्चों ने कभी किसी तरह की लड़ाई नहीं की है एंड बहुत मतलब अच्छे से उन लोग रहते हैं। तो ये जो रिलेशन है उन लोग अपने हर एक 20 स्टूडेंट्स को हमारे यहाँ मेंटर है। ये किसी कॉलेज में तो हर 20 स्टूडेंट्स को मेंटर, वो अपना पर्सनल ग्रीवांसेस भी कि आज हम खाना नहीं खा पाए, मेरा कपड़ा नहीं धुल पाया, हम कपड़ा सूख, ये सारी बातें मेंटर जो टीचर है उनसे बात करता है और जहां तक होता है हम लोग उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लाइक पीयर टू पीयर लर्निंग वाला भी एनवायरनमेंट बहुत बड़े हमारे यहाँ का कॉलेज का ये, मैडम आज हम लोग का क्रिकेट का बॉल खत्म है, ठीक है लो ये मेरे पैसे पे तुम खरीद, आज शटल कॉक खरीद लिया, कुछ होता नहीं है। लेकिन यही अगर हम किसी दूसरे कॉलेज में जाए, हम लोग खुद दूसरे में पढ़ाते थे, एक पेन और पेंसिल और एक चौक के लिए भी लिख के वो चलता रहता था, तब तक खुद से खरीद के आदमी कर। तो ये सारा चीज और जो हम लोग का बेस्ट अभी अवेलेबल है मार्केट में, कोई भी चीज, इधर बुक्स, लैब का कोई इक्विपमेंट हो, हम लोग उसको खरीदना चाहते हैं और खरीद। That's very great, ma'am. So moving to the last question, but not least, any suggestions you would like to give to the current youth and the aspiring students? सबसे पहले मेहनत से नहीं भागना चाहिए। They should put a goal, and for that goal, APJ अब्दुल कलाम बोले थे, सपना वो नहीं जो रात में देखते हैं, Yes, ma'am. सपना वो है जो तुमको सोने दे। तो ये हर एक यूथ को, और विवेकानंद भी बोले कि इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं, आपको गोल करिए, मेहनत करिए, डेडिकेशन करिए, फ्रूट अपने आप मिलेगा। Yes, ma'am. So this is the best I think every youth should do. कुछ भी अगर किसी को खेलने में मन लगता है, धोनी भी बन सकता, धोनी बना। आपको आर्ट में है, हमारे यहाँ हरेन ठाकुर है, बहुत तो जो कुछ भी करे, तबला ही बजाइए, दौड़िए, हॉकी में देखिए हमारे यहाँ रखे हैं, तो कुछ भी करे वो डेडिकेशन। ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेटर था, बॉलर था, वो बॉलिंग करने का प्रैक्टिस करता था दिन भर, रात को लौट के आता था, उनको नाम एग्जैक्टली नहीं आ रहा, हमने गलत नाम नहीं बोलना चाह रहे हैं, लौट के आता था और फिर वो कैंडल जलाता था। अगर उसके हाथ से कैंडल जल गया, इसका मतलब उसमें एनर्जी अभी भी, फिर जाता तो इस हद तक मेहनत करने पे ही जाती है। ये यूथ को समझ। Thank you very much, ma'am. Thanks. It's a very nice talking to you, ma'am. सेम यार, अच्छा लगा एक प्लेटफॉर्म पे बात करके ही वो कुछ बताएं। Thank you.